जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अफीक कुरैशी हिंदुस्तानी और आप एन भारत देख रहे हैं। क्या आपने कभी पाकिस्तान के हुक्मरानों के माथे पर पसीना देखा है? क्या पाकिस्तान के नेताओं को आपने परेशान देखा है? क्या आपने कभी सोचा है कि बात हिंदुस्तान में चल रही हो और परेशानी पाकिस्तान में हो रही हो? जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ है जब पाकिस्तान ने विंग कमांडर को बंदी बना रखा था। अभिनंदन देश के वो वीर योद्धा हैं जिन्हें पाकिस्तान को मात्र 60 घंटे के अंदर ही छोड़ना पड़ा। इस पूरे मामले पर उस वक्त भारत में पाकिस्तान में राजदूत रहे अजय बिसारिया की किताब एंगर मैनेजमेंट में खुलासा हुआ है। आइए आपको बताते हैं कि पर्दे के पीछे की वो कहानी जिसने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। Then we saw in the 80s and 90s that India really had no good response to the proxy war that Pakistan started. There was an illusion of great diplomacy in Zia's years, Zia's cloying, saccharine sweet diplomacy, his 5 trips to India, and all the diplomatic overtures that came after in the period in the 90s when Nawaz Sharif and Benazir were prime ministers. In the 80s, we also saw another overlay of some conversations around India's action in Siachen and a sort of Siachen diplomacy, if you will. But essentially, India had no great answer to the kind of proxy war that was going on. From 98, of course, we had nuclear diplomacy. That was another new layer. And the expectation that nuclear parity would dull Pakistan's dependence on both on revisionism in Kashmir and on terrorism was belied in the early 2000s, because we had the 1999 Kargil operation, although that is now seen even in Pakistan as an aberration by a small part of the military, and the terrorism that we faced through the 2000s, which did not abate. So it essentially became a sort of revisionism under a nuclear umbrella. So in 2001, what India had was a response of coercive diplomacy with Operation Parakram, and what we saw in 2005 onwards was a period of back-channel diplomacy that was attempted with Satinder Labba on this side and a number of interlocutors on the other side. पूर्व हाई कमिश्नर अजय बिसारिया ने एंगर मैनेजमेंट नाम की एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने भारत पाक रिश्तों को विस्तार से बताया है। अजय बिसारिया किताब में पूरे हमले के बारे में गहराई से इसके अंदर बयान करते हैं। उन्होंने कहा कि जब ये हुआ और उसके बाद नवाज शरीफ तक बात पहुंचती है, तो वो आर्मी ऑफिसर अधिकारियों से इस बारे में बातचीत करते हैं। नवाज शरीफ को जो बात पता चलती है उससे वो काफी नाराज होते हैं। इसी के बाद नवाज शरीफ के खिलाफ बहुत कुछ होता है और उनको प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ता है। उनके खिलाफ केस भी चलाए गए और इसी कारण उनको देश छोड़ना पड़ा। The public domain from the Pakistan side, because what we saw after in the last 1 or 2 years is the kiss and tell story of in the public domain between Bajwa and Imran Khan of what they were talking about, and Bajwa apparently also talked of a 20-year freeze on the Kashmir problem. So perhaps that could be the contour of what we could talk about. And let me also then come for a moment to the latest Supreme Court judgment. I would agree with, in fact, what General Hasnain said is that the essentially we should not let our guard down, because the lessons, I think, both of Ukraine and West Asia, the conflicts are that hubris, confidence makes you ignore a problem
which is not a huge problem, but it could be an irritant, and we need not let our guard down. And there was a similar piece, in fact, to General Hasnain's in the Times of India by Raja Mohan, again, with whom I'd agree when he says that we need to be focused on enhancing our comprehensive national power to deal with both to develop that capacity to deter both Pakistan and China from adventurism in the borders of Kashmir. But also, while Pakistan has weakened as a strategic actor in relation to India, its capacity to create trouble in Kashmir remains intact. And therefore, the two-front situation, the Pakistan's deepening partnership with China also presents a problem. So I think in developing our national capacity, we ought to be very aware of this sort of scenario. But in my view, the Supreme Court judgment is an important inflection point. I mean, it only reinforces what happened in 2019, but it's an important point. What I think it was a reasoned judgment, which was alive to the internal security challenge. It was alive to the external security challenge from Pakistan, and of course the political challenge. And I feel this judgment, while it shuts a door very firmly and establishes red lines, it also opens a window for Pakistan. In many of the Track 2 dialogues many of us were having with the Pakistanis, they are looking or have been looking for a face saver to climb down from their boxed-in position, thanks to Imran Khan, which said no talks with Article 370. So what they're looking for is something, statehood for Kashmir. This gives a visibility to when that statehood could possibly come. So I think it is something that in a scenario of terror and violence-free situation in 2024. भारत के पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने अपनी किताब में दावा किया है कि भारतीय पायलट अभिनंदन को हिरासत में लिए जाने के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान दोनों देशों में तनाव कम करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते थे। दोनों देशों में ताजा तनाव साल 2019 में उस समय सामने आया था जब भारतीय वायुसेना के जहाजों ने पाकिस्तान के बालाकोट इलाके में गोला बारूद गिराया था और दावा किया था कि उसने पाकिस्तानी धरती पर चरमपंथियों के ठिकाने पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। पाकिस्तान ने इसके जवाब में भारतीय जहाज MiG-21 मार गिराया था और एक भारतीय पायलट अभिनंदन को हिरासत में ले लिया। उन्हें बाद में तनाव कम करने के लिए भारत को वापस कर दिया गया था। देखिए, आप जैसा कि जानती हैं, इंडिया में इलेक्शन हुआ और जब भी एक नई गवर्नमेंट आती है, एक नई उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं। इस रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम है, एक ट्रस्ट डेफिसिट की प्रॉब्लम है और हमें लगता है कि आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये भरोसा जो एतबार हम बनाएं, आगे बढ़ें, उसकी बहुत ज़रूरी। देखिए, इस रिलेशनशिप में गलत फहमियाँ बहुत होती हैं और दोनों तरफ गलत फहमियाँ बहुत होती हैं। जैसे कि पाकिस्तान में एक गलत फहमी ये रही कि इंडियन इलेक्शंस में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा था। तो इंडियन इलेक्शंस में बहुत सारे मुद्दे थे, डोमेस्टिक मुद्दे भी। 27 फरवरी को जहाजों की उस डॉग फाइट के दौरान भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन का जहाज पाकिस्तान के एक मिसाइल का शिकार हो गया। वो LOC से 7 किलोमीटर अंदर गिरे और हिरासत में ले लिए गए। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अपनी किताब नेवर गिव एंड चेंज में लिखा है, मुझे लगता है कि दुनिया को सही तरह से ये मालूम नहीं है कि फरवरी 2019 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई परमाणु युद्ध में बदल सकती थी। वो उस समय वियतनाम में थे जब उन्हें भारतीय समकक्ष ने नींद से जगाया। उन्हें आशंका थी कि पाकिस्तान ने हमले के लिए परमाणु हथियार की तैयारी शुरू कर दी है
उन्होंने बताया कि भारत खुद भी झड़पों की तैयारी पर विचार कर रहा था। ये पुलवामा की घटना होने के बाद एक नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी पे फोकस आ गया और वो नेचुरल है। लेकिन वॉर द इंडियन मीडिया, देखिए जंग कोई नहीं चाहता और मीडिया के बारे में तो आप मीडिया से हैं तो आप बेहतर जानेंगे कि मीडिया में क्या होना चाहिए, मगर मीडिया में भी एक सेल्फ रेगुलेशन। देखिए पाकिस्तान में कई गलतफहमियां हैं और कई बार कुछ डिलिबरेट मिस इन्फॉर्मेशन। बिसारिया वो एक P5 राजनयिक का हवाला देते हुए लिखते हैं, उन राजनयिकों में से एक ने कहा कि पाकिस्तान को खुद अपनी आकांक्षाओं को सीधे भारत तक पहुंचाना चाहिए। बिसारिया लिखते हैं कि उस समय उन्हें इस्लामाबाद में मौजूद भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर सोहेल महमूद का आधी रात को फोन आया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते थे। उनका कहना है, मैंने सीनियर अधिकारियों से पता किया और जवाब दिया कि हमारे प्रधानमंत्री इस समय उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन अगर इमरान खान का कोई जरूरी संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो वो निश्चित रूप से मुझे दे सकते हैं। वो लिखते हैं कि इसके बाद उस रात उन्हें कॉल नहीं आई। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक करना है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था जो इन्होंने। इस पूरी घटना के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि पाकिस्तान कितना भी सीना चढ़ाकर, बाजुएं ऊपर करके, आस्तीन को चढ़ाकर हिंदुस्तान के सामने आ जाए, लेकिन पाकिस्तान जब हिंदुस्तान को देखता है तो वो डर के मारे थर-थर कांपता है। और यह भी बात साफ हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर आतंकी खेती होती है, क्योंकि जब अभिनंदन को लेकर खुलासा किया गया कि अभिनंदन को आखिर 60 घंटे के अंदर कैसे छोड़ दिया, तो खुलासे में पता लगा कि पाकिस्तान उस वक्त डर के मारे कांप रहा था, हिंदुस्तान की कार्रवाई को लेकर सोच रहा था। तमाम आला अधिकारी उस वक्त सकते में पड़े थे कि अगर भारत के इस वीर को नहीं छोड़ा तो फिर भारत की तरफ से कार्रवाई क्या होगी। तो ये तमाम खुलासे इस वक्त आपके सामने आ गए हैं और पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नई खबर और नई अपडेट के साथ मैं फिर हाजिर हूंगा। नमस्कार, आदाब।